السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال۔ خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے بتائیں، صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کر لیا۔ صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے تحفظات کے باوجود اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کی۔ صدر نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری پر بدھ کی رات 11:15 بجے دستخط کیے۔ صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم کی جانب سے لگائے گئے الزامات اور لہجے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں نگران وزیر اعظم کا لب و لہجہ قابل افسوس ہے۔ صدر ریاست کے سربراہ اور جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ بحیثیت صدر مملکت نگران وزیر اعظم کے جواب پر تحفظات ہیں۔ صدر مملکت کو عام طور پر سمریوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا۔ نگران وزیر اعظم نے سمری میں ناقابل قبول زبان اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ صدر کو قوم کی بہتری اور ہم آہنگی کے لیے قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے آرٹیکل 48 کے تحت سمری دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس نہیں کی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ شہباز شریف وزیر اعظم، ایاز صادق اسپیکر ہوں گے۔ نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی نے توثیق کر دی۔ غلام مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نامزد۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 2 مارچ کو ہوگا۔ 4 مارچ کو قومی اسمبلی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے 169 ووٹ درکار۔ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کو 200 سے زائد اراکین کی حمایت۔ نئی قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس کے حوالے سے اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کی سیکیورٹی انتظامات کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 9 منتخب اراکین اسمبلی کو خط جاری کر دیے۔ خط کے مطابق اراکین قومی اسمبلی کے اہل خانہ اور مہمانوں کے لیے خصوصی دعوت نامے جاری کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق کسی قسم کے گارڈز یا ہتھیار اسمبلی لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ لاجز، M&A ہاسٹل اور پارلیمنٹ ہاؤس کے درمیان شٹل سروس چلائی جائے گی۔ خط کے مطابق اراکین پارلیمنٹ کے ڈرائیورز گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی رکھے۔ سیکیورٹی خدشات آڑے آ گئے۔ قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں مہمانوں کے لیے جاری کردہ اپر وزٹر گیلری کا کارڈ منسوخ کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے یہ کارڈ منسوخ کرتے ہوئے ترجمان نے واضح کیا، تمام مہمانوں کے لیے اپر وزٹر گیلری کے کارڈ سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ 9 منتخب ارکان سے کہا گیا کہ وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ کارڈ اپنے ہمراہ لائیں۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم، ایاز صادق کو اسپیکر قومی اسمبلی کا امیدوار نامزد کر دیا۔ پاکستان پہلے کبھی اتنا زخمی نہیں دیکھا۔ 2 سال میں مشکلات پر قابو پالیں گے، عوام کو مہنگائی اور بھاری بلوں سے نجات دلائیں گے۔ ہمیں مشکلات سے نمٹنے کے لیے متحد رہنا ہوگا۔ قائد نون لیگ کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا سیاسی جماعتیں سیاست کریں لیکن ملک اور نظام کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ دھرنوں اور گالم گلوچ نے سیاسی ماحول خراب کیا۔ جنہوں نے مجھے سزا سنائی، آج وہ ججز منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان بہت زخمی ہے، اس وقت بہت زخمی ہے۔ اس طرح کا زخمی پاکستان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے مل کر پاکستان کے زخم بھرنے ہیں۔ پہلے جو ہے 1.5-2 سال ذرا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مشکل کے ہوں گے۔ اس مشکل میں ہم نے بالکل اس طرح سے رہنا ہے جی، ایک ہو کر، اور انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے کہ پاکستان اگلے 1.5-2 سال میں ان مشکلات سے باہر نکل جائے گا۔ بہت مشکل حالات، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا مہنگائی کا ہے۔ بجلی گیس کے بلوں کو کم کرنا ہے، اپنی روپے کی قیمت کو ٹھیک کرنا ہے، اور لگتا ہے جیسے غصے سے نکالا مجھے۔ کیا غصہ تھا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا بھائی، کیا کیا تھا میں نے؟ اس میں اور بھی پلیئرز تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ قوم جو دن دیکھ رہی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ 2017 میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2018 میں جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ مسلم لیگ نون پھر جیتے گی۔ ہر بندہ جانتا ہے یہ نقصان مسلم لیگ نون کو نہیں پہنچایا، انہوں نے نواز شریف کو نہیں پہنچایا، ملک کو تباہ و برباد کی۔ پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ملک سے۔ ہم نے تو بھائی ہر موقع پہ آپ کو ہم نے دعوت دی ہے، ٹیم کے ساتھ مل کے چلیں، ہم آپ کو ڈیو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور دیں گے، آئندہ بھی دیں گے۔ جو بھی ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے ان کو آ کر لابھ بٹھایا، وہ پاکستان کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے وہ 1.5 سال چلایا ہے معاملات کو اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا حوصلہ ہے، انہی کی ہمت ہے۔ بطور وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کروں سردار ایاز صادق صاحب جو ہے وہ ان کو بطور اسپیکر کے اپنا امیدوار کریں۔
नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद। कहा, हमारे अरकान असम्बली अपने बलबूते पर जीत कर आए। आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए, जिसके बाद कौमी असम्बली में हमारी अददी कुव्वत 104 हो गई है। नवाज शरीफ ने जाली और झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, लेकिन किसी को मीर जाफर नहीं कहा। जलाओ घेराव से गुरेज और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सदर पाकिस्तान है, आइन की एक मरतबा फिर धज्जियां बिखेर रहे हैं। नए असम्बली का इजलास जो उनका आइनी फरीजा था उसको उन्होंने इग्नोर किया। हमें शुक्रिया अदा करना है उन नेशनल असम्बली के मुंतखब नुमाइंदों का जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों से जीत के आए, मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है, बिल्कुल गैर मशरूत तौर पर तशरीफ लाए, जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी कुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। आपका हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया। आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ आपने ये सारे जबर आपने बर्दाश्त किए, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फलां मीर जाफर है, गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाए। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, किसी ने GHQ की तरफ कभी देखा तक नहीं। सी पैक के मंसूबे आप लेके आए, आपने 5000 मेगावाट बिजली और कौम को मुहैया की, और इस तरह 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो गई। दहशतगर्दी की इसका मुकम्मल खात्मा हो गया। आपने पाकिस्तान के चारों सूबों को मोटरवेज के जरिए उनको कनेक्ट किया। कराची के लोग आज भी आपको झोलियां उठा के दवाएं देते हैं। आपने कराची का अमन वापस किया और कराची के बच्चे आपने मुकर्रर किया। कराची के लिए पानी के मंसूबे, ग्रीन लाइन जो ट्रांसपोर्ट कराची का मंसूबा है, वो आप ही की अल्हम्दुलिल्लाह सोच की अक्कासी करता है। पाकिस्तान भर में अवामी खुशहाली और तरक्की के मंसूबों की तख्तियां गिनी जाएं तो शायद महीने लग जाएंगे, वो तख्तियां नहीं गिनी जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नई हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ मईशत, कौमी इत्तफाक राय, इंतखाबी और अदालती असलाहात पर अमल दरामद की तजावीज़ पेश कर दी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए अशाइये से खिताब में कहा, जानते हैं मुल्क में ऐसे सियासतदान हैं जो नफरत की सियासत और माशरे में तकसीम चाहते हैं। वक्त की ज़रूरत और अवाम का मुतालबा है, सियासी जमातें मिल बैठ कर मेहनत और कोशिश से मुल्क को मसाइल और बहरानों से निकालें। मसाइल को सामने रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, और हम दुआ गो है कि इंशाअल्लाह ताला हम सब मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को इन मसाइल से निकाला जाए। मेरा जो आपका ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें एक चार्टर ऑफ द इकॉनमी पे काम करना चाहिए। हम जानते हैं कि इस मुल्क में ऐसे सियासतदान हैं जिनकी सियासत नफरत पे मबनी, वो इस मुआशरे को तकसीम करना चाहते, मगर वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आवाम का ही मुतालबा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मिल बैठ के अपने मसाइल का हल निकालें। बड़ी खबर दे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अहम इंकशाफात। कहते हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमारे पास बैठकर कानून साजी कराते थे, मजलिस आमिला और FATF से मुतल्लिक भी कानून साजी कराते थे। इस माहौल में और क्या हो सकता था, जो बिगाड़ पैदा हुआ भुगत रहे हैं। अभी एग्जाम्पल दिया है कि हमने ये कोशिश अपोजिशन में भी की थी, लेकिन हमें हमारा हाथ जो है झटक दिया गया था। आप देखें कि उस दौर के अंदर हम लेजिस्लेशन के लिए ISI के मेस में जाते थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते थे। आमला की भी और FATF की भी दोनों लेजिस्लेशन जो है ना वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से हुई थी। उस माहौल में फिर क्या हो सकता था? उस माहौल में जो आज माहौल देख रहे हैं आप जो है, ये उस वक्त की जो है जो बिगाड़ जो पैदा हुआ है उसको हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना के दर पर हाजिरी, हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त। इत्तहादी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फजलुर रहमान के हमसे नहीं, हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहते हैं सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और दीगर ओहदों पर मौलाना वोट दें। उधर सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सदारत कोर कमेटी का इजलास, कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास की हिकमत अमली तय कर ली। JUI कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेगी। कोर कमेटी के इजलास में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, असलम गौरी, हाफिज़ हमदुल्ला, उस्मान बादीनी, मौलाना समीउद्दीन, नूर आलम खान ने शिरकत की।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई की पाकिस्तान मुखालिफ एक और साजिश। तहरीक इंसाफ ने IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खत लिख दिया। बानी पीटीआई की हदायत पर आलमी मालियाती इदारे को खत अरसाल कर दिया गया। खत बानी पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने लिखा। खत में बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनज़र रखने की दरख्वास्त की गई। खत के मंदरजात भी मंजर-ए-आम पर आ गए। खत में कहा गया कि बानी पीटीआई IMF और रियासत पाकिस्तान के मबैन किसी डील के दरमियान नहीं आना चाहते। हकीकी मानों में पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत ही इस हवाले से बातचीत का इख्तियार रखती है। हम हुकूमत साजी, कर्ज़ों की अदायगी और कानून की हुक्मरानी के लिए IMF की डील की अहमियत से आगाह हैं। IMF से मुतालबा करते हैं किसी भी माली डील से कबल ऐसे मामलात को देखा जाए। कौमी और सूबाई असम्बली की कम अज़ कम 30% सीटों का ऑडिट किया जाए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने IMF को खत लिखे जाने की तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा IMF को साफ शफाफ इलेक्शन के वादे की यकीन दहानी कराई है। ज़राए के मुताबिक IMF ने खत का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहाँ ही ओपन होगा। IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था, और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। बानी पीटीआई की तरफ से IMF को ख़त लिख दिया गया। ख़त के मंदरजात में IMF के बेल आउट पैकेज को सियासी इस्तेहकाम के साथ मशरूत करने को कहा गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहा, बानी पीटीआई की ज़ुबान में सियासी इस्तेहकाम का मतलब उसका ज़ाती इक़्तिदार और हुक्मरानी है। कहाँ गए ग़ुलामी, नामंजूर और एब्सोल्युटली नोट के नारे। आज बानी पीटीआई लिख के ऐसे इदारे की मिन्नतें कर रहा है जो अमरीका के बराह रास्त ज़ेर असर है और अमरीका की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान की इमदाद नहीं करेगा। अब पीटीआई वाले ग़ुलामी, मंजूर और एब्सोल्युटली यस के नारे लगाएं। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका कर्ज़ों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत करता है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा, पाकिस्तानी मईशत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे दोबारा शुरू होगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, जबकि वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। इजलास का एजेंडा 3 निकात पर मुश्तमिल है। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो गया वो हल्फ उठाएंगे। इसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बाबर सलीम सवाती स्पीकर की उम्मीदवार, जबकि सुरैया बीबी को डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार नामजद किया गया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके। इजलास में कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का पहला ही इजलास शदीद बदनज़मी, हंगामा आराई की नज़र हो गया। अरकान ने शोर शराबे और नारेबाजी में हल्फ उठाया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले ऐवान मछली मंडी बना रहा। 9 मुंतखब अरकान के 4000 से ज़ायद मेहमान लाने पर बदनज़मी हुई। पीटीआई कारकुनान ज़बरदस्ती ऐवान में दाखिल हुए, नारेबाजी करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में घड़ी, लोटे और जूते लहराए गए। हंगामा खेज इजलास का अहवाल पेशावर से लिहाज अली की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की 9 मुंतखब असम्बली का पहला इजलास हुल्लड़बाजी और बदनज़मी की नजर। ईवान में पीटीआई के हजारों कारकुन दकम पेल करते हुए जबरदस्ती दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरीज और दीगर जगहों पर गैर मुतल्लिक़ अफराद का हजूम रहा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली को ईवान में दाखिल होने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह 11 बजे बुलाए जाने वाला इजलास बदनज़मी के बाद 1.5 घंटा ताहीर से शुरू हुआ। मेहमानों की गिलरीज से अपोजिशन अरकान के खिलाफ नारेबाजी की गई। कारकुनों ने लोटे और जूते बरसाए। नून लीग की सुबिया शाहिद ने गड़ी उड़ाकर जवाबी नारेबाजी की। पीटीआई के मेंबरान बानी पीटीआई की तस्वीर लिए ऐवान में आए। बार बार तनबीह के बावजूद शोर शराबा खत्म न हुआ तो स्पीकर ने हंगामाराई के दौरान 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। कल इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर शाहिद खान और कैमरा टीम के हमरा लिहाज अली, न्यू न्यूज़ पेशावर।
बलूचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही इजलास 58 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इजलास दिन 3 बजे तलब। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सरफराज बुगटी और सनाउल्लाह ज़हरी मजबूत उम्मीदवार, जबकि आसिफ जरदारी अली हसन ज़हरी को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब के बलाई इलाकों में आज कराची में जुमे से बादल बरसने का इम्कान। आज से 1 मार्च तक गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। गवादर में तूफ़ानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, दुकानें, बाजार, मोहल्ले और सड़कें हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। जवानी में 3 बंद टूट गए। नदी नालों में तुग़यानी के बायस सुर बंदर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और कैच में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पाक ईरान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब सैलाब में फंसी गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और कोजिक टॉप में बर्फबारी जारी है। गवादर और जवानी पाक फौज की अमदादी कार्रवाइयाँ जारी, जबकि अब तक 5 अफराद को बाहिफाजत निकाला जा चुका है। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। कराची वाले खबरदार, होशियार। आज रात से कराची में तेज़ बारिश और आंधी का इम्कान है, जबकि शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। माहीगीरों को गहरे समुंदर में जाने से रोक दिया गया, जबकि शहर में इस वक्त 9 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर कायद के मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताइएगा। देखिए, कराची का मौसम एक बार फिर जो है वो तब्दील होने को तैयार है और महकमा मौसमियात ने कराची शहर में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिशों की नवीद जो है वो सुना दी है, जिसके पेश नज़र आज रात से जो है वो बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची में दाखिल होगा और जिसके बाद आज रात और कल दिन में जो है वो तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि तेज़ ठंडी हवाएँ आंधी के साथ हवाएँ चलेंगी और तेज़ बारिश होगी। आज दर्जा हरारत शहर का तकरीबन जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि हवा की बात करें तो इस वक्त शहर में हवा की रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जिसमें हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 50% नोट किया गया। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज शहर में जो बारिश का सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद जो है वो शहर का मौसम तब्दील हो जाएगा और शहर में ठंड जो है वो दोबारा से ठंड में इजाफा भी देखा जा सकता है। जी शहूद, आपका बेहद शुक्रिया, आपने आगाह किया। दूसरी जानिब मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज से दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ जारी रहेगा, ताहम आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद और सर्दी का राज बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयशा शुएब से। जी आयशा, बताइए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होगा और इसके साथ साथ मुल्क के बेशतर इलाकों में 29 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। आज शाम से जो बारिशें हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो जाएंगी। जैसे पहाड़ी इलाकों में कहा जा रहा है कि बर्फबारी के इम्कानात भी हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के चंद अजला में आज शाम को गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, जबकि 1 मार्च को पंजाब के बेशतर अजला में बारिश जमकर बरसेगी और दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जबकि महकमा मौसमियात ने आज शाम से मुल्क के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। जी शुक्रिया आयशा, आप आगाह कर रही थी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में खुश्क सर्दी में कमी रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक शहर भर में बारान रहमत बरसने का इम्कान है, जिसके बायस अगले 2 रोज़ मौसम मज़ीद खुशगवार हो सकता है। आज सुबह शहर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मौसम से मुतल्लिक मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ जहां से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त सुबह सवेरे से ही सूरज अपने पूरे आबताब के साथ जो है निकला हुआ है, अपने केरने जो है बकेरने लगा है। लेकिन सुबह के टाइम ठंडी हवाओं के बायस मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। खुशगवार मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए जो है शहरी बाहर निकले हुए हैं, परिंदे जो है आसमान में चहचहाते हुए नज़र आ रहे। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے تو اس وقت شہر میں جو موجودہ ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 90% موجود ہے اور ہوائیں جو ہے وہ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 2 روز تک جو ہے باران رحمت برسنے کا امکان ہے جس کے باعث شہر کا موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو سکتا ہے، سردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ آصف۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنڈ دادن خان میں موسم بہار کو خوش آمدید کہنے اور سیاحت کو فروغ کے لیے 2 روزہ پیراگلائیڈنگ فیسٹیول کا انعقاد۔ ملک بھر سے 100 سے زائد پیراگلائیڈرز نے حصہ لیا، شہری نے شرکت کی اور پیراگلائڈز کے مختلف فلائی مووز سے محظوظ ہوئے۔ رپورٹ کریں گے سلیم باگڑی۔ ایڈونچر کے شوقین اور خطروں کے کھلاڑیوں کے لیے ہوا میں اڑنے کا منفرد احساس لیے جہلم اور چکوال کے سنگم پر تاریخی قلعہ نندانا کے اونچے اور سرسبز پہاڑوں پر پیراگلائیڈرز نے ہوا میں بلندیوں کو چھونے کا مظاہرہ کیا۔ پیراگلائیڈنگ فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاح اور شائقین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ خوبصورت پہاڑوں اور وادی کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑتے کرتب دکھاتے پیراگلائیڈرز کی مہارت سے بھی محفوظ ہوئے۔ پنجاب اسمبلی نے حکومت پنجاب کے لیے 1 ماہ کے اخراجات جاریہ کے لیے 358 ارب روپے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود بجٹ کی تحریک منظور ہو گئی۔ اپوزیشن نے دستاویزات پھاڑ کر ایوان میں لہرا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیر سگالی کا پیغام دیتے ہوئے اپوزیشن رہنما رانا آفتاب احمد خان کی نشست پر پہنچ گئی۔ تفصیلات لاہور سے شیخ عمر دراز کی رپورٹ میں۔ 124 to 31 March 2024 those in favor say aye, those against say no۔ حکومت پنجاب کے 1 ماہ کے اخراجات جاریہ کا معاملہ 1 مارچ سے 31 مارچ تک اخراجات جاریہ کی منظوری کے لیے مریم اورنگزیب نے تحریک عوام میں پیش کی۔ تحریک پیش ہوتے ہی اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد خان نے نقطہ اعتراض اٹھا دیا۔ کہا پہلے بتایا جائے یہ بجٹ کس مد میں خرچ ہونا چاہیے۔ Sir, advance میں بھی you have to ask something why it is needed۔ یہ میں نے آپ سے کہا مطلب whenever you relax the rules، جب آپ rules بھی relax کرتے ہیں you have to give a very valid reason کہ we are relaxing the rules۔ اگر آپ کو advance چاہیے why؟ مریم اورنگزیب نے ایوان کو بتایا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز، عدالتی اور حکومتی معاملات کے لیے اخراجات ناگزیر ہیں۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان نوک جھوک کے بعد اسپیکر نے تحریک منظوری کے لیے ایوان میں پیش کی جس پر اپوزیشن نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور بجٹ تحریک کی دستاویز پھاڑ کر ہوا میں لہرا دی۔ شور شرابے کے دوران اخراجات جاریہ کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ Schedule for authorized expenditure for the period from 1st March 2024 to 31 March 2024 has been laid and after the conclusion of this قبل از اجلاس کے آغاز پر ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا، خود چل کر اپوزیشن رکن رانا آفتاب کی نشست پر چلی گئی اور جمہوریت، عوام اور صوبے کی ترقی کے لیے اپنے عزم کا بھرپور اظہار کیا اور توقع کی کہ اپوزیشن عوام کے مفادات کے لیے تعاون کرے گی۔ کیمرہ مین خواجہ فہیم اور ساتھی رپورٹر میاں نوید کے ساتھ شیخ عمر دراز، نیو نیوز لاہور۔ مریم نواز کا عوامی انداز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جاتی عمرہ سے آفس تک عام شہری کی طرح سفر کیا، ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہوئی، صبح 9 بجے ہی آفس پہنچ گئی، عزم ظاہر کیا کہ عوامی خدمت اولین فرض ہے، مخالفین کی باتوں کو غلط ثابت کروں گی، پروٹوکول نہ لینے کا فیصلہ عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے کیا، خود مشکل برداشت کر لوں گی، عوام پر مشکل نہیں آنے دوں گی۔ مریم نواز نے انتظامیہ کو 1 ماہ میں پورے پنجاب سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو صفائی ستھرائی بر وقت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سپیریئر یونیورسٹی کے 7ویں کانووکیشن کی ریہرسل کی تقریب کا انعقاد سپیریئر یونیورسٹی مین کیمپس میں کیا گیا۔ تقریب میں ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان، پیٹرن، ڈینز اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا احوال بتائیں گے شاویز باجوہ اس رپورٹ میں۔ سپیریئر یونیورسٹی کے 7ویں کانووکیشن تقریب کے ریہرسل ڈے زور و شور سے جاری، طلباء نے بھرپور انداز میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے طلباء کو گائیڈ کیا کہ کل اس ایونٹ کو اس طرح سے کامیاب کرنا ہے۔ ریہرسل ڈے میں ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان سمیت پیٹرن، ڈینز، ایچ او ڈیز، استاذہ اور طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں طلباء
को उनकी सीट और डिग्री हासिल करने की मालूमात दी गयी ताकि किसी को किसी तरह का मसला दरपेश ना हो। तलबा और पैटर्न ने डिग्री वसूल कराने की प्रैक्टिस की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन का इनकाद कल सुपीरियर यूनिवर्सिटी मेन ड्राइव एंड कैंपस में होगा। कैमरामैन सुदाम हुसैन के साथ शहवेज बाजवा, न्यू न्यूज लाहौर। न्यू न्यूज़ के मुल्कगीर प्रोग्राम हुस्न किरत के सुल्तान के लिए हैदराबाद से बड़ी तादाद में कारी ऑडिशन के लिए असरा यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां कारी हजरात ने खूबसूरत किरत करके समा बांध दिया। इस हवाले से देखेंगे नासिर शेख की रिपोर्ट में। न्यू न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम हुस्न किरत का मुल्कगीर मुकाबला। किरत के सुल्तान के लिए हैदराबाद की इसरा यूनिवर्सिटी में मुकाबले। 35 तुलबा ने अपनी खूबसूरत आवाज से जजेस के दिल मोह लिए। कामयाब होने वाले 6 तुलबा अगले राउंड के लिए मुंतखब। मुकाबले में शिरकत के लिए आने वाले 35 से ज़ायद कारी हजरात का कहना था कि इसी मुकाबले के जरिए इनकी हौसला अफजाई भी हुई और सीखने का मौका भी मिला। हमें खुशी हो रही है कि इंटीरियर सिंध के बहुत अच्छे कारी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं जिनके हम ऑडिशंस कर रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से हमें एक अच्छी तादाद मिलेगी जिन्हें हम साथ अपने लाहौर किरत के सुल्तान के लिए ले जाएं। और हमारे पास जो जजेस होंगे वो इंटरनेशनल जजेस हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा सफ़र अभी कराची, कोयटा और फिर वापस लाहौर की तरफ है। न्यू न्यूज़ की टीम छोटे बड़े शहरों से ऑडिशन के जरिए किरत के सुल्तान के लिए खूबसूरत आवाज के हामिल कारी हजरात को मुंतखब कर रही है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में पैरों और टखनों की तकलीफ, असबाब और इलाज के सिलसिले में 5 रोज़ा इंटरनेशनल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफ स्पाइन सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ और प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ स्टेप टू वॉक डॉक्टर मार्क मायरसन ने शिरकत की। पहले दिन डॉक्टर मार्क मायरसन, डॉक्टर शिवू आनली, डॉक्टर जंगली, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ और डॉक्टर साद इलियास ने पैरों और टखनों की तकलीफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर्स दिए, जबकि दूसरे दिन पैरों और टखनों की बीमारियों में मुब्तला तकरीबन 30 से ज़ायद मरीज़ों का चेकअप किया गया। तीसरे और चौथे रोज़ घुरकी अस्पताल के डॉक्टर्स के हमरा 20 से ज़ायद मरीज़ों के ऑपरेशंस किए गए। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ का कहना था, पैरों और टखनों की सूजन एक आम मसला बन गया है, जिसके इलाज के लिए पाकिस्तान में सहूलियात नापैद होने के साथ साथ डॉक्टर्स की भी अशद कमी महसूस की जाती है। उनका कहना था, डॉक्टर मार्क मायसन और डॉक्टर शिवानली के बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, जहां उन्होंने ना सिर्फ मरीज़ों को चेक किया बल्कि उनके ऑपरेशंस भी किए। स्टेप्स टू वॉक के साथ दुनिया के 22 ममालिक में 150 से ज़ायद सर्जन हैं जो पैरों और टखनों की तकलीफ़ का इलाज करते हैं। डॉक्टर मार्क मायसन ने 1 साल में 2 मरतबा पाकिस्तान आने के अज़म का इजहार किया। पंजाब हुकूमत ने अवामी खिदमत का आगाज़ कर दिया। रवा साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों में खुश्क राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। राशन की तकसीम के लिए तरीक़ाकार भी मुरतब किया जा रहा है। तफसीलात अब्दुल वहाब शाहिद की रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब भर में मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम करने की तैयारियां जारी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को घर की दहलीज पर 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन पहुंचाया जाएगा। पोलियो और रेवेन्यू टीमों की मदद से राशन बैग्स की तकसीम की जाएगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों का डाटा फ्राहम करेगा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 4,81,000 रजिस्टर्ड घरानों की जांच पड़ताल के बाद तस्दीक हुई तो 23,000 लोग मुस्तहिक करार ना पाए। बाकी 4,58,000 से ज्यादा घरानों की दोबारा से तस्दीक की जाएगी। लाहौर डिवीजन में 10,10,146 घरानों का डाटा फ्राहम किया गया है। अवाम का कहना था कि रमजान बाजार से हर तबका रिलीफ हासिल कर लेता था, अब तो गरीब तबके को महंगे दामों अशिया खरीदनी पड़ेंगी। बाजार ये लगने की वजह से ना बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। बकायदा पैसे देने की बजाय ये बाजार इनको लाजमन लगाना चाहिए, क्योंकि वो सस्ती चीज़ हम गरीबों को मिल जाती है। आप नहीं लगा रहे तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती है ना। पहले हमें कौन सा राशन घर में बजाया है। रमज़ान बाजार जी
लगवाना चाहिए ताकि चलो सब फ़ायदा उठा लें जो कुछ भी है। जिन घरानों का राब्ता नंबर या एड्रेस दस्तयाब नहीं, उनकी तस्दीक शनाख्ती कार्ड नंबर या मैनुअल तरीके से की जाएगी। तस्दीक के बाद मुस्तहिक घरानों तक राशन बैग की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक एक राशन बैग की कीमत 3500 रुपए के करीब बताई जा रही है। लाहौर शहर में फराहम किए जाने वाले डाटा के मुताबिक 2 अरब से जायद के राशन बैग लाहौर में तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन जमशेद के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। दालें दुनिया भर की तरह पाकिस्तानियों की खुराक का अहम हिस्सा हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक तमाम दालों के मुकाबले पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा दाल माश खाना पसंद की जाती है। तफसीलात सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट में। दालों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दाल कौन सी है? माश, चना, मसूर, मूंग या अरहर की दाल? गैलप सर्वे के मुताबिक 21% अफराद ने माश की दाल के हक में फैसला सुना दिया। 17% पाकिस्तानियों ने चने की दाल को पसंदीदा करार दिया। 14% ने दाल मूंग और 8% ने मसूर की दाल को चुना, जबकि 4% ने लोबिये को पसंदीदा करार दिया। मेरी पसंदीदा दाल जो है वो चने की हैगी, और अगर वो फ्राई होती है ना, उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं हरी मिर्चें और धनिया वनिया ये डाला हुआ होता है और उसके ऊपर तड़का लगता है, तो उसमें ज़रा अच्छी तरीके से लगती है। शहरियों ने जहां दाल माश को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहा, वहीं दालों की बढ़ती कीमतों का भी शिकवा कर दिया। शहरियों का कहना था अरहर की दाल पसंद है, मगर 740 रुपए किलो की दाल कौन खरीदे? दालों के अंदर विटामिन है, लेकिन हमारे यहाँ इतना केमिकल इस्तेमाल कर दिया है खेती बाड़ी के अंदर कि हर चीज़ का असर उड़ गया है। अब यह कि बस पेट भरने के लिए समझ ले घास फूस खा रहे हैं, टेस्ट खत्म है। वो मुझे उम्मीद है नई हुकूमत कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, उम्मीद है। इसी उम्मीद पे ये लोग कुछ इन्होंने अपना एक का किया है, और सदर साहब से तो बड़ी उम्मीद है। और बिलावल बच्चा भी माशाल्लाह बड़ा जोश में शायद कुछ कर दे। सर्वे में 6% ने सब दालों को पसंदीदा कहा। अलबत्ता 4% अफराद ऐसे भी नजर आए जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी दाल पसंद नहीं। कैमरामैन नुमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। कराची के निजी जामियात के तलबा ने थेरेपिस्ट के बगैर एक्सरसाइज मशीन और दिल की बरकी हरकत की खराबी को जांचने वाली मशीन तैयार कर ली। तलबा कहते हैं अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो कम कीमत पर यह मशीनें तैयार करके लोगों की खिदमत की जा सकती है। मज़ीद शफकत अजीज़ की रिपोर्ट में। कराची में तलबा का बड़ा कारनामा, दिल की बरकी हरकत में खराबी फौरी पकड़ने और फिजियोथेरेपी की जदीद मशीन तैयार कर ली, जो आम शख्स भी बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। कराची की सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में नए रुझानात पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तलबा की जानिब से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के शोबे में मसनूई जहानत के इस्तेमाल से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए रखे गए। इस प्रोजेक्ट का जो हमने डिजाइन किया है, इसका ये एडवांटेज है कि आप घर पे इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट से उसके जो मसल्स की सिग्नल्स होते हैं उसको लेता है और खुद आइडेंटिफाई करके ये भी बताता है कि कितनी एक्सरसाइज उसको नीड है। तो हमने बेसिकली प्रोजेक्ट ये बनाया है कि वो पेशेंट जो पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स हैं जो फालिज के थ्रू चले गए हैं और उनकी मसल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उनकी मसल मूवमेंट रिवाइव करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है जो रिहैबिलिटेशन करवाता है। जामिया इंतजामिया का कहना है कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी तलबा के प्रोजेक्ट को न सिर्फ हुकूमती सतह पर रोशनास कराएगी बल्कि सरमाया भी फराहम करेगी ताकि तिब के शोबे में बेहतरी आ सके। जो हमारे डॉक्टर हबीब, डॉक्टर इरम आफाक का जो विजन है वो ये विजन है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को बच्चों को आगे लाया जाए, सरकारी सतह पर उनको रिकग्नाइज़ कराया जाए और साथ में उनको पूरी सपोर्ट दी जाए कि वो इंसानियत की खिदमत के लिए अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्रोडक्ट की शक्ल में लेकर आएँ। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के शोबे में होने वाली नई इजादात और इस शोबे में होने वाली नई जिद्दत के बारे में तलबा को आगाह किया गया। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ASP शहरबानों की मुलाकात। सिपा सलार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर शहरबानों की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी राय मुयस्सर होते हैं, कानून को हाथ में ना लिया जाए। पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं, उनका एहतराम हमारे मज़हब के साथ साथ हमारी माशरती इक़्तिदार भी शामिल है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहा। दोस्त दोस्त ना रहा, पैसे की खातिर दोस्त ने यारी दाव पर लगा दी। लाहौर के इलाके चुंग में अमीर बलाज टीपू के कत्ल में उसका देरीना दोस्त ही मुलविस निकला। एहसन शाह ने रैकी के लिए 5 करोड़ में डील की, 50 लाख एडवांस वसूल किए। पुलिस ने एहसन शाह समेत 3 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। देखेंगे शाहिद रिजवी की रिपोर्ट।
दोस्ती इम्तहान लेती है पर दोस्तों की जान लेती। दौलत की हवस ने दोस्त को अंधा कर दिया। अमीर बालाल टीपू के कत्ल में जिगरी दोस्त एहसन शाह के शामिल होने का इंकशाफ। अमीर बालाल टीपू को मुबैना तौर पर कत्ल करवाने के लिए 5 करोड़ की डील की, जबकि 50 लाख एडवांस भी वसूल किया। एहसन शाह के इब्तदाई बयान के मुताबिक कत्ल की प्लानिंग 1 माह कबल हुई। लाहौर के इलाके बादामी बाग के रिहायशी मलक सुहेल ने एहसन शाह की ख्वाजा उर्फ पीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट से मुलाकात करवाई। पुलिस की तहकीकाती टीमों ने एहसन शाह मलक सुहेल को बादामी बाग और अली पठान को मानसेरा से हिरासत में लिया। मजीद गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तहकीकाती टीमों के छापे जारी। अमीर बालाल टीपू केस में तहकीकाती टीमों ने मजीद दफात भी शामिल करने का फैसला किया, जबकि कत्ल केस में मुबैना तौर पर आला पुलिस अफसरान और एहलकारों के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ किया। शाहिद रिजवी, न्यूज़ लाहौर। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।